ओके, वेलकम बैक एवरीवन। तो फटाफट देखते हैं अब इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। राइट, चलो। तो ये आसान क्वेश्चन है, उसमें फ्री के मार्क्स लेने हैं आपको। जस्ट अच्छे से प्लॉट करो आपको जो दिया गया है। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 दे आर आस्किंग यू दैट रिप्रेजेंट्स रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। अगर मैं क्वेश्चन 6 आपको करा दूंगा तो क्वेश्चन 7 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 अंडर रूट 9.3, तो कोई भी नंबर के लिए है तो ये होगा। और इन बिटवीन पूछ रहे थे, कोई शायद प्रहलाद मुझे पूछ रहा था सर व्हाट इज स्पाइरल मेथड। तो स्टूडेंट्स हम जो ये मेथड कर रहे थे ट्रायंगल वाली, ये राइट, हम ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे क्या कर रहे थे, वन यूनिट लिया तो ये आपका हो गया रूट टू और वन लिया तो ये आया आपका रूट थ्री और वन लिया तो आया रूट फोर और वन लिया तो आया रूट 5। ओके, सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका स्पाइरल बनते जा रहा है। So that's why this method is called spiral method, right? तो spiral method और कुछ नहीं है, इसी मेथड का नाम है spiral method. Is it clear everyone? सबको क्लियर हुआ what is spiral method? Okay. Now if you want to plot root 9.3 on number line, first आपको 9.3 plus 1 करना पड़ेगा। 9.3 plus 1 will be 10.3, right? So you have to draw one diameter of 10.3. Suppose this is whole length is my 10.3, isn't it? This is my x, this is my a, this is my point c. Okay, now from that I have to take 9.3 first. So if this is 9.3, this will be the length 9.3, this will be my point b. Now I have to take its midpoint. Okay, so what will be midpoint of 10.3? It will be 5.15. So suppose this is my midpoint is my o. So with this midpoint and with this OA or OCS radius, suppose this midpoint is over here, this is my midpoint O and OC radius, I will draw this semicircle. Okay, now from B I will draw perpendicular over here. So from B, if I am drawing this perpendicular, this is D, this BD will be my under root 9.3 from that theorem. This is its geometrical representation. Now I have to represent root 9.3 on number line students. तो यहाँ से एक काम करना है, ये O को मैं ले लूंगा 0, this O will become my 0, this C will become my 1, this is my 0, this is my 1. Oh, sorry, my mistake. This B will become 0 and this C will become 1. Right, my mistake. Sorry, B will become 0 and C will become 1 because from distance B to C it is 1 unit. And I will take B as center and BD as arc. I will draw one arc over here which will intersect here at point. That point will be of square root 9.3. So everyone clear with this? This is how we can draw square root 9.3. Okay. So Sakib is asking, sir, can we take 2 centimeter as 1 unit? Yes, we can take. Why not? So if you know question 6 now, root 9.3, you can easily draw question number 7, which is root 4.7. So 4.7 आप easily कर सकते हो, isn't it? अगर root 9.3 आपको पता है तो. So is it clear everyone? If it is clear, type clear. If you are having any doubt, you can type doubt. सर सर्कल मेथड में हम 1 यूनिट को 2 या 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। यशस इज आल्सो आस्किंग सेम क्वेश्चन। यस, you can take 1 unit as 2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, whatever you feel comfortable, right? Chalo. Now you are having doubt. Now you are having doubt in question number 8, 9 and 10. Now see student, question number 8 तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। ओके, अभी इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका आराम से हो जाएगा। 0.53 up to 3 decimal places, so it will be 0.535. Now you can draw this right with magnification. Now visualize 2.61 on number line using successive magnification. So now question 8 and question 9 can you can do again from home. And question number 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है क्वेश्चन, समझो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है सॉल्व 0.6 बार प्लस 0.15 बार, हियर बार इज ओनली ऑन 5 नॉट ऑन 1, ऑन नंबर लाइन अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन में आपको इन दोनों का प्लस दिखाना है। ओके, चलो इन दोनों का प्लस कैसे दिखाओगे? तो सबसे पहले आपको इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा
इन दोनों का प्लस करके आप बताएंगे कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम कैसे करेंगे समझो। तो 0.6 आपका 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो जाएगा 0.666, 0.155 आपका 3 डेसिमल प्लेसेस तक हो जाएगा 0.155। So 6 plus 5 will be 11. 6 plus 5 will be 11 plus 1 2, and 6 plus 1 plus 7 plus 1 8. So this will be your 0.821. Okay. So you have to plot this 0.821 on number line. But exactly अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 666 भी आगे बढ़ता जाएगा, 55 भी आगे बढ़ता जाएगा, तो ये 0.821 नहीं 0.822 ही आएगा। So let me show you one another method for it. 0.6 bar प्लस 0.15 बार। ओके, अगर आपको इन दोनों का प्लस करना है तो आप प्लस कैसे करोगे समझना। सी, अगर आपको इसका प्लस करना है तो आप पहले इसको, सपोज आपको 3 डेसिमल प्लेस बोले हैं तो एक डेसिमल ज्यादा ले लो, फिर आप इसको वापस 3 डेसिमल में कन्वर्ट करो, राइट। सो आई एम टेकिंग 1 डेसिमल मोर ओवर हियर फर्स्ट। सो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका 1 आएगा, 6 प्लस 5 11 प्लस 1, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 12। तो दिस विल बी 0.8221 और चलता जाएगा। फिर यहाँ से आप 3 डेसिमल तक कट कर दो, सो दिस विल बी योर 0.822। नाउ यू कैन प्लॉट 0.822 ऑन नंबर लाइन वेरी मच इजीली। ओके, हाँ, जिसने जो अदर मेथड से की है क्वेश्चन नंबर 10 दे कैन आस्क मी। ओके, बट आपको 0.822 करना है। जिसने जो भी अलग मेथड से की है तो अलग मेथड आप मुझे भेज सकते हैं। सो आपका आज का होमवर्क क्या होगा? आज का होमवर्क आपका यही है, 9M 1.3। आपको जितने डाउट थे इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क में मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। तो आपको जितने डाउट वाले क्वेश्चन थे वो सारे आपको कंप्लीट कर देने हैं, ये पूरा आपको फिनिश कर देना है। सो टुडे योर 9M 1.3 फिनिश हो जाना चाहिए। 9M 1.3 स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में। ओके, so everyone clear with this? If it is clear, type clear in chat box. If you are having any doubt, you can type your doubt in chat box. Okay, so this is all about your homework and everything. Okay, now Sakib is telling that sir, if I do like that, I am having problem. ठीक है साकिब, बताओ क्या प्रॉब्लम है। नव्या सर, आई प्लॉटेड इट बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, उसी से करना है। शशांक ने होमवर्क पूछा, होमवर्क मैंने बता दिया। अहद ने अलग मेथड से किया। क्वेश्चन 10 सेंड मी अहद दिस योर मेथड, आई विल सी। ओके, सो इज इट क्लियर एवरीवन? प्रहलाद बोल रहे हैं 0.822 सर, कैन वी प्लॉट 0.822 नंबर लाइन इंस्टेड ऑफ 0.8221? हाँ, यस, नहीं एग्जैक्टली आपको 3 डेसिमल प्लेस तक बोला है प्रहलाद, इसलिए 3 डेसिमल प्लेस तक 822 ही लेना है। ओके, रीड योर क्वेश्चन केयरफुली। चलो, okay, Prahlad is asking again the question. Sir, I plotted using successive magnification question 9.3. अच्छा ठीक है, नव्या सेंड मी देयर, देखता हूँ। क्वेश्चन 9.3 मतलब 9.3 कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 9 वो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से ही करना है, पूरा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से ही करना है स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ तक रखे स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बिकॉज 5:15 से आपका दूसरा क्लास है, राइट। सो जानवी, मैं होमवर्क वापस बता रहा हूँ, डोंट वरी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर डिस्कनेक्ट हो गए थे तो डाउट हो तो पूछ लेना। 9M 1.3 के इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क में जितने डाउट्स थे वो मैंने आज क्लियर कर दिए हैं। तो आज आपको होमवर्क में वही चीजें फिनिश करनी है। ओके, विकास सर, व्हाई डिड यू टेक 4 डेसिमल पॉइंट्स दो इट वाज गिवन 3 डिजिट्स? हाँ विकास, वो इसलिए मैंने 4 पॉइंट्स लिए एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या है? 0.6 बार का मतलब क्या है? वो 666 चलता ही जाएगा, और 5 बार का मतलब क्या है? 0.555 चलता ही जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0.822222 चलता ही जाएगा, कंटिन्यूस चलता जाएगा, राइट। इसलिए वो कंटिन्यूस चलता जाएगा, वो दिखाने के लिए मैंने एक पॉइंट ज्यादा लिया, क्योंकि वो नहीं लेता तो लास्ट वाला पॉइंट मेरा 1 आ रहा है, तो वो 1 को रिमूव करने के लिए मैंने ऐसा किया। साकिब, यू आर अनम्यूटेड नाउ। साकिब, यू आर अनम्यूटेड नाउ। बोलो आपका डाउट। सर, अगर मैं 2 सेंटीमीटर को बेस और परपेंडिकुलर लेता हूँ सर, तो फिर जो हाइपोटेनस जो √2 आता है ना सर, तो वो एक्चुअली 3 सेंटीमीटर आता है सर, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आप मुझे आपने जो ड्रॉ किया है वो मुझे भेजो, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली उसमें प्रॉब्लम क्या है। ओके, जस्ट ठीक है टेक सर। इट, स्पीक एंड सेंड मी। ओके ओके सर। ओके, चलो, so shall we keep till here only?
एनी अदर डाउट्स? क्या अभी स्क्रीन विजिबल है? मिस हेली, हेली आपको और कोई डाउट है? तो बीच में जब भी ब्लर हुई थी उसके स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं, वो मैं भेज दूंगा। ओके, हेली इज इट क्लियर टू यू नाउ? हेली आप पूछ रहे थे कि स्क्रीन बीच में बहुत ब्लर हो रही है। ओके, ओके, thank you, thank you students, so let us keep till here only. Thank you students.